اہلا وسہلا ومرحبا بكم بقناة عربک لرننگ اکیڈمی۔ آج ہم لوگ الجاحظ کے بارے میں جو MCQs ہیں سب سے پہلے وہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا سوال ہے کہ من هو الكاتب الذي كان يقترح حوانيت البراقين ويعتكف فيها للدرس والمطالعة حتى أحصى سائل العلوم واستبطن دقائق الفنون۔ وہ کون سے کاتب ہیں؟ الذي اقترا کا مطلب ہوتا ہے رینٹ پہ لینا، حانوت جمع حوانیت مطلب ہوتا ہے دکان، ٹھیک ہے، اور براقین مطلب ہوتا ہے کہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل کے زمانے کی بات کریں تو یہ ہو جائے گا جو پرنٹنگ ہاؤس جو پرنٹ کرتے ہیں وہ، تو حوانیت البراقین جو کہ ورق لے کے لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ کون سے کاتب ہیں جو کہ وراقین کی دکان کرایہ پر لیتے تھے، وہ یعتکف فیہا للدرس والمطالعہ۔ اعتکاف میں سے ہوتا ہے رک جانا کسی کام کے لیے، کسی چیز کے لیے خود ایک جگہ رک جانا، مقر تھا، اور وہ اس میں رک جاتے تھے مطالعے کے لیے اور پڑھنے کے لیے۔ حتی احصى سائل العلوم، سائل العلوم کا مطلب ہے العلوم السائلہ، یعنی العلوم الجاریہ، یہاں تک کہ اس میں جتنے اس وقت کے جاری علوم تھے، جو مروجہ علوم تھے جس کو بولتے ہیں، اس کو انہوں نے اپنے اندر داخل کر لیا۔ واستبطن دقائق الفنون، اس کا مطلب ہوا الفنون الدخیلہ، یعنی کہ باہر سے آنے والے فن، اور جو باہر سے آنے والے جتنے فن تھے اس کو بھی اپنے اندر سمو لیا۔ تو وہ کون سے کاتب ہیں بتائیں آپ لوگ؟ جاحظ، ابن مقفع، میر، صاحب بن عباس۔ جاہد جائز ہیں، یہ جائز ہے۔ اور یہ عبارت جو ہے کان یبتری سے لے کر کے، ایک منٹ، اسکرین یہ ہو گئی کیا؟ انویزیبل ہے سر۔ ہاں تو جی چلیں، تو اس میں جو ہے یہ جاہز ہے، اور یہ عبارت جو ہے کان یکتری حوانیت البراقین، یہ آپ کو حسن ریاض میں مل جائے گا، تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہے اخذ الجاہز العلم والادب والکلام من عدت۔ جی سر وہ جو بولیے۔ ورقین ہے، ورقین ہاں یہ وہ کتاب بیچنے والا نہیں ہوگا کیا؟ کتاب بیچنے والا؟ ہاں ہاں، کتاب بیچنے والا بھی کتاب بیچنے والا ہم کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن اصل اس کا ترجمہ وہ ہوگا، وراقین کا مطلب یہ ہوگا جو کتاب لکھ کر کے بیچتا ہو، سمجھ گئے؟ جس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہے باتیں، لیکن وراقین کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو کتاب، وراقین جو کتاب لکھ کر کے ورق پہ لکھ کر کے پھر وہ بیچتا ہو، اس کو بولتے ہیں وراقین۔ جیسے جی آج سر۔ کل یہ ہے پبلشنگ ہاؤس ہے، تو پبلشنگ ہاؤس کیا کرتا ہے؟ پہلے وہ کتاب چھپواتا ہے، پھر اپنی جگہ جو دکان ہوتا ہے وہاں پہ لاتا ہے، پھر وہاں بیچتا ہے۔ تو سوال نمبر 2 دیکھیے، اخذ الجاحظ العلم والادب والکلام من عدت علماء وليس منهم۔ جاحظ نے علم، ادب اور کلام سیکھا ہے کچھ علماء سے، وليس منهم، اور ان علماء میں سے نہیں ہے۔ تو کون نہیں ہے؟ اسمعی، ابو عدا، ابو اسحاق نظام، صاحب بن عباس۔ بتائیں۔ آپشن 4 سر۔ آپشن 4، صاحب بن عباس جاحظ کے اساتذہ میں نہیں، بلکہ اسمعی، ابو عدا، ابو اسحاق جاحظ کے اساتذہ میں ہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، ممن تعلم الجاحظ علم الکلام۔ جاحظ نے علم کلام کس سے سیکھا؟ علم کلام ایک طرح کا یہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، جس میں کہ عقائد سے بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو علم کلام میں جاحظ نے کس سے سیکھا؟ اسماعیل سے، ابو اسحاق نظام سے، ابو عبیدہ سے، ابن المقفع سے۔ جلدی بتائیں۔ جاحظ نے علم کلام جو ہے ابو اسحاق نظام سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ علم کلام جاحظ نے ابو اسحاق نظام سے سیکھا۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا۔ کلیئر ہے؟ آواز آ رہی میری نا؟ اچھا، اب دیکھیے فولٹیر جو ہے، فولٹیر آواز بریک ہو رہا ہے سر۔
आवाज आ रही नहीं सर। आवाज़ मेरी आ रही है? ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 4 है कि मयूर को भी एक फोल्टेयर जो है ये वेस्ट में लिटरेचर के बहुत ही बड़े मशहूर मतलब अदीब गुजरे हैं, ठीक है। तो जाहिद को कहा गया है कि ये जो है मशरिक यानी ईस्ट के फोल्टेयर हैं लिटरेचर में। वही सवाल है, सवाल में मयूर को भी फोल्टेयर शर्त फिल अदब, किसको ये कहा जाता है कि लिटरेचर में मशरिक का यानी ईस्ट का वो फोल्टेयर है, किसको कहा जाता है? इब्न मुकफ़ा, जाहिद, अब्दुल हमीद कातिब, इब्न रब्बीब। जल्दी बताएं कौन सही होगा? ऑप्शन 2 सर। ऑप्शन 2 जाहिद को कहा जाता है फोल्टेयर शर्त फिल अदब, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए, मन क़ाला मुतहद्दिसन अन कुतुबिल जाहिद। जी बोलिए। कह रहे हो फोल्टेयर वो कहाँ के रहने वाले थे, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये मुझे नहीं पता कहाँ के रहने वाले थे, बस ये कि फोल्टेयर जो थे ये मगरिब के यानी कि वेस्ट के थे कहीं के, ठीक है। और वेस्ट के थे इतना पता है, अब किस एग्जैक्ट किस कंट्री के थे तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने भी नहीं देखा आज तक। हाँ ये है कि लिटरेचर के मशहूर आदमी थे ये, तो इस वजह से जाहिद को कहा गया है कि ये मशरिक में जो है ये जाहिद फोल्टेयर हैं लिटरेचर के। तो फोल्टेयर को देख लीजिएगा कहाँ के थे और किस कंट्री के थे और उनकी क्या क्या किताबें हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमें जिस चीज़ से मसला है वो ताल्लुक़ है वो ये कि जाहिद को कहा जाता है फोल्टेयर शर्क़। अब बच्चा डिटेल में देखना चाहें फोल्टेयर क्या थे नहीं थे वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 चलें। सवाल नंबर 5 है, मन क़ाला मुतहद्दिसन अन कुतुबिल जाहिद, किसने जाहिद की किताबों के बारे में बयान करते हुए कहा कि तुअल्लिमुल अक़्ल अव्वलन वल अदब सानियन, कि जाहिद की किताबें सबसे पहले अक़्ल सिखाती हैं फिर अदब सिखाती हैं, ठीक है। जाहिद की किताबें सबसे पहले तुअल्लिमुल अक़्ल सिखाती हैं फिर अदब सिखाती हैं। तो ये बहुत ही मशहूर जुमला है ये वाला, तुअल्लिमुल अक़्ल अव्वलन वल अदब सानियन। तो ये किसने कहा था जाहिद के बारे में, बताएं। इब्नुल हमीद ने। ऑप्शन ये 1 इब्नुल सर। हमीद ने कहा। जी इब्नुल हमीद ने कहा था, ये इब्नुल हमीद ने। चलिए सवाल आवाज नहीं आ रही है सर। सुनाई नहीं देता है। आवाज ब्रेक हो रही है सर। ना इशू हो जाता है ना। हाँ तो चलें, तो सवाल नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे थे कि अल्लफ़ जाहिज़ कुतुबन कसीरा वलैसा मिन्हा, जाहिज़ ने बहुत सारी किताबें लिखी वलैसा मिन्हा और उनमें से नहीं है, यानी कि जाहिज़ की कौन सी किताब नहीं है? किताबुल बयान व तबयीन, किताबुल हैवान, किताबुल महासिन वल अज़दाद, अद-दुर्रतुल यतीमा। तो बताएं कौन सी बुक जाहिज़ की नहीं है?
अद्दुर्रतुल यतीमा नहीं है। जी, अद्दुर्रतुल यतीमा जायज़ की नहीं। ये किसकी है अद्दुर्रा अल यतीमा? इब्न मुकफ़्फ़ा की। वेरी गुड, इब्न मुक़फ़्फ़ा की है। चलिए सवाल नंबर 7 है, फ़ी अय्यि मौज़ूइन अल्लफ़ल जाहिज़ किताबुल बयान व तबयीन। जाहिज़ ने किताबुल बयान व तबयीन किस मौज़ू में लिखा, उसका टॉपिक क्या है? नंबर 1 फ़िल हैवान, नंबर 2 फ़ी वस्फ़िल इंसान, नंबर 3 फ़ी इल्मिल उमरान, नंबर 4 फ़िल अदबी वल इंशाई वल ख़ताबा। अदब, इंशा, ख़ताबत में। तो बताएं किताबुल बयान व तबयीन किस फ़न में है? ऑप्शन 4 क्या? सर, ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 4 फिल अदबी वल इंशाई वल खताबा। अदब, इंशा, खताबत के बारे में किताबुल बयान व तबयीन। और ये याद रखिए, बहुत अहम ये है पॉइंट है। चलिए सवाल नंबर 8 है, अल्लफ़ल जाहिज़ कुतुबन कसीरा व मिनहा। जाहिज़ ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उनमें से, यानी कि उनमें से कौन कौन सी किताब है? रिसालतुल गुफ़रान, रिसालतुल इस्यान, रिसालतुत तरबीअ व तदवीर, रिसालतुल इख़वान। तो बताएं जाहिज़ की कौन सी किताब है? ऑप्शन 3 रिसालत तरबी और तदवीर। ऑप्शन 3 जायज़ की बुक है रिसालतुत तरबीअ व तदवीर। और ये किसके है? रिसालतुल गुफ़रान किसकी है? लाला मादी की। मारी। जी, अबुल अला मार्री की है। अबुल आला अब मार्री। जी, अबुल अला मार्री की है रिसालतुल गुफ़रान। चलिए सवाल नंबर 9 है, मा कुन्यतुल जाहिज़। जाहिज़ की कुन्यत क्या है? अबू उस्मान, अबू मोहम्मद, अबुल मुक़फ़्फ़ा, अबुल अस्वद। बताएं। कौन सर? अबू उस्मान। जी, मान। अबू उस्मान, ऑप्शन नंबर 1। चलिए सवाल अबू उस्मान। नंबर 10 है, लिमादा लुक़िबल जाहिद बिल जाहिद। जाहिज़ का लक़ब जाहिज़ क्यों पड़ा है? नंबर 1 लिजुहूद आइनैही। हाँ। नंबर 2 लिअन्न इहदा आइनैही मख़फ़ूआ, क्योंकि उसका कोई एक आँख वो था, फोड़ा हुआ था। नंबर 2 लिअन्न इहदा उदुनिही मक़तूआ, क्योंकि उसका कोई एक कान कटा हुआ था, मक़तूआ हो गया। लिअन्न इहदा रिजलिही मकसूरा, क्योंकि उसका कोई एक पैर टूटा हुआ था। लिजुहूज़ आइनैही, उसके दोनों आँख के उठने की, मतलब आँख जो है ना थोड़ा सा वो तिरछा देखते हैं ना, और उठा हुआ रहता है, तो उसी को बोलते हैं जुहूज़ आइनैही। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1 लेजूज लाइनिंग। ऑप्शन 1 सही होगा बिल्कुल। सवाल नंबर 11 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से जी सर। कि सर ये समझाइए थोड़ा। जी जी जो समझाइए थोड़ा। नहीं है ये। जी आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ सर कह रहा हूँ जुहूज़ आइनैही के मतलब नहीं समझ में आ रहा। देखिए जहाज़ा, जहाज़ा जो है जहाज़ा, इसका माना होता है कि आँख का थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, तिरछा टाइप का नहीं देखते हैं, तो वो मतलब होता जहाज़ा का मतलब, ठीक है। तो उसके दोनों आँख थोड़ी सी तिरछापन वो देखते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो आँख देखने में लगता है तिरछापन, तो उसी को बोलते हैं जुहूज़ आइनैही। समझे? बोले समझ में आई? आवाज़ आ रही मेरी? जी सर। चलिए चलिए आगे। सवाल नंबर 11, मन हुआ अव्वल आलिम अरबीन जमा बैन अल जिद्दी वल हज़ली। वो कौन से पहले अरबी के आलिम हैं जिन्होंने जिद और हज़ल को जमा किया? मतलब ये हुआ कि एक तरफ लिटरेचर में कोई भी तहरीर लिखें तो उसमें एक तरफ वो हो संजीदगी हो, और दूसरी तरफ थोड़ा सा फुकाहिया भी हो, यानी कि जिसके अंदर वो हो मजाक भी हो थोड़ा सा, तो हज़ल। तो बताएं वो कौन से अरबी के आलिम हैं जिन्होंने संजीदगी और हज़ल, यानी कि मजाकपन, थोड़ा सा फुकाहियापन, दोनों को जमा किया? अबू उस्मान, अम्र, अल जाहिज़, कुल्लु मिन सलास। तो बताएं कौन से हैं? मिना सलास।
कुल्लु मिन सलास होगा क्योंकि अबू उस्मान उसकी कुनियत, अम्र नाम, जाहिज लक़ब। सवाल नंबर 12 है मा हियल जाहिज़िया, जाहिज़िया क्या है? जाहिज़िया नंबर 1 मज़हबुन फ़ी तौहीद इनफ़रद बिहिल जाहिज़ दूनल मुतकल्लिमीन, कि जाहिज़िया जो है एक मज़हब है फ़ी तौहीदी, तौहीद में, यानी मतलब ये है कि अक़ीदे में, कि अल्लाह को एक मानने में। हाँ, इनफ़रद बिहिल जाहिज़ दूनल मुतकल्लिमीन, जो कि जाहिज़ ही के साथ ख़ास है दूसरे मुतकल्लिमीन के अलावा। और मुतकल्लिम से यहाँ मुराद है कि वो उलमा जो कि इल्म कलाम में शगफ़ रखते हैं, इल्म कलाम से जिनको इल्म कलाम में जो काम करते हैं, मुतकल्लिमीन से मुराद है। ठीक है। नंबर 2 मदरसतुन फ़िल अदब इनफ़रद बिहल जाहिज़, कि जाहिज़िया जो है एक लिटरेचर का एक स्कूल है जो कि जाहिद ही के साथ खास है। नंबर 3 कुल्लु मिन इस्नैन। नंबर 4 अन्नास अल्लज़ीना युताबिऊन अल जाहिद फ़िल अदब, वो लोग जो जाहिद की पैरवी करते हैं लिटरेचर में। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा 12 का? जी ऑप्शन 3। नंबर 1 सर। ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। वजह यह है कि जाहिज़िया जो है ये लिटरेचर से इसका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि जाहिज़िया एक जो इल्म कलाम है अक़ाइद की के बाब में, ये एक मज़हब, और जाहिज़ ने एक मज़हब और जाहिज़ ने जो कुछ कहा उसका एक स्कूल ऑफ थॉट तैयार हो गया। किसके बाब में? इल्म कलाम के सिलसिले में। और उसी पे जो लोग चले तो उसी को जो है जाहिज़िया बोलने लगे। इस ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्लियर हुआ ये? बताएं। जी सर। सवाल नंबर 13 है मनिल कातिब अल्लज़ी इस्तदआहुल मामून व सद्दरहु फी दीवान रसाइल वलाकिन्नहु इस्ताफ़ा अक़िब थलाथति अय्याम, वो कौन से कातिब हैं जिसको मामून ने बुलवाया और उसको दीवान रसाइल में उसको सदर बनाया, लेकिन उन्होंने 3 दिन के बाद ही रिजिग्नेशन दे दिया। ठीक है। वो कौन से कातिब हैं? जाहिद, अब्दुल्ला बिन क़फ़्फ़ा, अब्दुल हमीद अल कातिब, अबुल फ़रज अस्फ़हानी। जल्दी बताएं कौन है? ऑप्शन 1 सर। ऑप्शन 1 जाहिद। ऑप्शन 1 जी। मामून ने इसको मामून ने बुलाया, इसको कहा कि चलो तुम सदर बन जाओ, बने, लेकिन 3 दिन के अंदर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, कहा कि ये मेरा काम नहीं है कि सदर बन के रहूं। चलिए सवाल नंबर 14 है मन क़ाल अनिल जाहिद, किसने जाहिद के बारे में कहा था कि इन सबत अल जाहिद फ़ी हाज़ा दीवान अफला नजमुल कुत्ताब, कि अगर जाहिद इस दीवानुर रसाइल में रुक गए, वहाँ रह गए, अफला नजमुल कुत्ताब, तो राइटरों का और लिखने वालों का जो सितारा है वो गुरूब हो जाएगा, डूब जाएगा। किसने कहा था जाहिज के बारे में ये? साल बिन हारून, अब्दुल्ला बिन क़फ़्फ़ा, अब्दुल हमीद कातिब, इब्न नज़्ज़ाम। बताएं। ऑप्शन 1 सर। सहल बिन हारून ने कहा था। रीज़न ये है ना कि जब जाहिज को मामून ने बुलाया ना दीवान और रसाइल में तुम सदर बन जाओ, तो बन गए। तो उसी वक्त सहल बिन हारून ने कहा था कि इंथबत अल जाहिज फी हादा दीवान, कि अगर जाहिज इस दीवान में रुक गए तो कातिबों का सूरज गुरूब हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर वो वहाँ रह जाते तो गोया कि एक तरह की वो बंदिश में रहते, बंदिश में रहते तो वो लिख नहीं पाते और उनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें हो जाती। और पता है कि अगर सरकारी कोई कवि बन जाए या राइटर बन जाए तो वो आज़ाद नहीं रह जाता है, बल्कि उनके ऊपर सारी बंदिशें होती है, सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, फॉलो करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ही में ले लें कि अगर कोई आईपीएस बन गया तो चाहे कुछ भी लिखना चाहे, कोई चला जाए गवर्नमेंट जॉब में, तो पहले जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता उस वक्त जितना खुल के लिख पाते हैं, तो उस वक्त जाकर के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो बस इसी वजह से इनके बारे में कहा गया था। चलिए सवाल नंबर 15 मता तवफ़ी अल जाहिज़, जाहिज़ की वफ़ात कब हुई? 868 ईस्वी में, 255 हिजरी में, कुल्लू मिन इस्नैन, 898 ईस्वी में। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन 3 होगा सर।
ऑप्शन थर्ड से होगा सही। 868 ईस्वी में और 255 हिजरी में इनकी वफात हुई। सवाल नंबर 16 देखिए कि कैफ तूफ़िल जाहिज़, जाहिज़ की वफ़ात कैसे हुई। नंबर 1, वक़ात अलैहि मुजल्लदातुल कुतुब अल मसफ़ूफ़ा फ़क़तलतहु, कि उस पर किताबों की जिल्दें, मतलब ये अलमसफ़ूफ़ा मतलब जो एक दूसरे पे पड़े हुए थे, जैसे एक किताब, दो किताब, तीन किताब, चार किताब ऐसे पड़ा हुआ था, तो यही इनके ऊपर गिरा तो फ़क़तलतहु, तो उसको मार डाला। मसफ़ूफ़ा, ठीक है, सफ़ लगाया हुआ, मसफ़ूफ़ा में से सफ़ लगाया हुआ। नंबर 2, क़तलहु अहमद बिन अबी दाऊद हरक़न बिन्नार, इसको अहमद बिन अबू दाऊद ने आग में जला के मार दिया। नंबर 3, इक़्तालहु अल फ़तह बिन ख़ाक़ान, कि इसको धोखे से फ़तह बिन ख़ाक़ान ने मर्डर कर दिया। नंबर 4, कुल्लु मिन सलास, तीनों के तीनों वजह से ये मरे। तो बताएं जायज़ कैसे मरे हैं। ऑप्शन 1 सर। ऑप्शन 1 कि जाहिज़ पे किताबों का कई वॉल्यूम लगा हुआ था, वही उन पे गिरा तो वो मर गए। चलिए हमजानी का पढ़ते हैं। हमदानी, बदिउ ज़मा हमजानी कहाँ पैदा हुए। हमजान, बसरा, कुफा, शाम। ऑप्शन 1 सर। ऑप्शन 1 हमजान। हमजान में पैदा हुए बदिउ ज़मा हमजानी। मा कुनियत बदिउ ज़मा अल हमजानी, बदिउ ज़मा हमजानी की कुनियत क्या है बताएं। ऑप्शन 1 अबुल फजल। फजल सर। अबुल फजल, अबुल फजल सही होगा, इनकी कुनियत है। आगे है कि ऐन तसद्दा बदिउ ज़मा अल हमदानी लिमुनाज़रती अबी बकर अल ख़वारिज़मी, असल में बदिउ ज़मा हमदानी बिल्कुल उस वक्त नौजवान थे, शायद के 25 से कम ही होंगे वो। तो वो गए एक जगह, तो अबू बकर ख़वारिज़मी का वहाँ पे पूरा शोहरा था, तो दोनों में फिर मुनाजरा चला, डिबेट चला था, और उसमें डिबेट ऐसा चला कि अबू बकर ख़वारिज़मी को हार मानना पड़ा, और ये उस वक्त बूढ़े हो चले थे अबू बकर ख़वारिज़मी। तो उसी के बारे में कि बदिउ ज़मा हमज़ानी को कहाँ अबू बकर ख़वारिज़मी से डिबेट करना पड़ा। ऐन तसद्दा, हरात में, हमज़ान में, निसापुर में, कुफा में। ऑप्शन 3 बताएं। सर। निसापुर में, निसापुर में बदिउ ज़मा हमज़ानी को अबू बकर ख़वारिज़मी से डिबेट करना पड़ा। चले सवाल नंबर 4 है, ला यज़ालु बदिउ ज़मा हमज़ानी यंतक़िलु फ़ी हवादिर फ़ारस फ़फ़ी निहायति ऐन अलक़ा असाहु व अय्य मदीनतिन इस्तौतनहा। बदिउ ज़मा हमज़ानी फ़ारस के इलाक़ों में घूमते रहे, यंतक़िलु घूमते रहे, यतूफ़ु यतजव्वलु, फ़फ़ी निहायति आखिर में ऐन अलक़ा असाहु। देखिए अलक़ा असाहु जो है ये एक ताबीर है जिसका मतलब ये होता है कि किसी जगह को अपना वतन बना लेना। अलका में से डालना, असा में से लाठी, जहाँ पे अपनी लाठी उन्होंने अलका डाल दिया, यानी कि वतन बना लेना, अलका साहु का मतलब है। फ़फ़िन नहायत ऐन अलका असाहु, तो आखिर में कहाँ पे उसने अपना वतन बनाया। वह अय्या मदीनतिन इस्तौतना, और किस शहर को अपना वतन बनाना, दोनों का माना एक ही है, बस वर्ड अलग है। तो हरात, निसापुर, हमजान, मौसिल, बताएं किसको अपना वतन बनाया घूमते हुए लास्ट में। ऑप्शन 1 सर, हिरात। हरात, जी, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सवाल नंबर 5 है, मनिल अदीब अल्लज़ी कान यंज़ुरु फ़ी औराक़ मिन किताबिन लम यअरिफ़हु नज़रतन वाहिदतन सुम्मा युअद्दी मा फ़ीहा ला यख़रिमु मिनहा हरफ़न। वो कौन से अदीब हैं जो कि किताब के सफ़हात को देखते थे, लम यअरिफ़हु नज़रतन वाहिदतन, और उसको सिर्फ एक ही बार, उससे पहले उसने एक बार भी नहीं देखा है। तुम युअद्दी मा फ़ीहा, फिर जो कुछ उसमें होता था वो बोल देते थे, पढ़ देते थे। ला यख़रिमु मिनहा हरफ़न, और एक हर्फ भी वो कमी नहीं करते थे, यानी कि कोई भी वरक़ एक बार देख लिया, एक बार सिर्फ, तो दोबारा हू बहू वो दम बोल देते थे। तो वो कौन से अदीब हैं बताएं। जाहिज़, हमदानी, हरीरी, इब्न मुक़फ़्फ़ा। हमदानी सर।
ऑप्शन 2 हमदानी है, ये हमदानी की ये खासियत है। ठीक है, आगे चलें। चलिए सवाल नंबर 6 है, मादा युकालु लिलहकायात अलक़सीरा अल्लती तशमुलु कुल्लु वाहिदतिन मिनहा अला हादिसतिन ला तस्तग़रिक़ु गालिबन अक्सर मिन मक़ामतिन या जलसतिन व तंतही बिअज़तिन और मुलहतिन। तो उन छोटे छोटे हकायात स्टोरीज़ को, किस्सों को क्या कहा जाता है? अल्लती तश्तमिलु कुल्लु वाहिदतिन मिनहा हादिस अला हादिसतिन, जिनमें से कि हर एक जो हकाया होता है किसी इंसिडेंस पे मुश्तमिल होता है। ला तस्तग़रिक़ु गालिबन अक्सर मिन मकामा, और एक मजलिस से ज़्यादा पे वो मुहीत नहीं होता है, यानी कि एक मजलिस से ज़्यादा पे वो एक्सटेंड नहीं करता है। वतंतही बिअदतिन और मुलहतिन, और वो जो ख़त्म होता है या तो कोई नसीहत से ख़त्म होता है या किसी फ़ुकाहिये से ख़त्म होता है। ठीक है, तो बताएं उसको क्या कहा जाता है? मकामा, रवाया, अश्शअरुल मंसूर, अल-क़सीदा अन-नसरिया। तो बताएं। ऑप्शन 1 सर। ऑप्शन नंबर 1 मकामा, इसको मकामा कहा जाता है। और मकामा किसको बोलते हैं? यही मकामा क्लियर कर लीजिए कि मकामा ये है कि एक छोटा किस्सा होता है, उसमें एक कोई ना कोई वाक़या होता है और बहुत शॉर्ट में होता है। उसको एक मजलिस ही में सुना जा सकता है, एक मजलिस ही में लिखा जाता है, और आखिर में या तो कोई नसीहत पता चलता है या नहीं तो एक तरह का वो मुलहा, मतलब ये है कि वो फ़ुकाहिया होता है। मन अजादा फ़न्नल मकामा, किसने फ़न्ने मुलहा के मकामा माने क्या है सर? बेहतरीन कर। जी सर मुलहा का माना, मुलहातुन के माना यहाँ पर? मुलहतुन को बोलते हैं नुक्ततुन, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको सुन करके थोड़ा सा वो आए, क्या बोलते हैं, मज़ा आए, मुलहा का मतलब। ठीक है, मुलहा ऐसी चीज़ जिसको सुन करके थोड़ा सा मज़ा आए, जिसको बोलते हैं फ़ुकाहा, बोल सकते हैं फ़ुकाहा। और उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? उर्दू में क्या एग्जैक्ट वर्ड होगा, लेकिन आप समझ जाइए मुलहम से होता है ये। ठीक है, सवाल नंबर 7, मन अजादा फ़न्नल मुकामा, यहाँ पे अजादा है, अस्ससा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से इसमें किसी कंफ्यूजन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। किसने फ़न्ने मुकामा को बेहतरीन तौर से लिखा? अजादा मीन से अहसना, बेहतरीन तौर से लिखा। बदिउज़्ज़मा हमज़ानी, हरीरी, ख्वारज़मी, अहमद शौक़ी। तो बताएं। नंबर 1 नंबर 1 बदिउज़्ज़मा हमज़ानी ने मकामे के फ़न को वो बुलंदी बख्शी और बेहतरीन तरीके से इसको अदा किया। और मुअस्सिस की बात करें तो मुअस्सिस इसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन मुअस्सिस इससे पहले भी कुछ लोगों ने लिखा था, जैसे इब्न दरीद ने भी लिखा था मकामा, 40 मकामा गालिबन। तो इसीलिए बदिउज़्ज़मा हमज़ानी ने मकामे के फ़न को तमाम तरह की जो फ़नी खूबियाँ होती है, सिफ़ात अल-फ़न्निया, अल-मिज़ात अल-फ़न्निया, तो वो सारी चीज़ें भर के इसको बुलंदी बख्शा, वरना इससे पहले भी शुरू हो गया था, बदिउज़्ज़मा से पहले। चलिए सवाल नंबर 8 है, कम कान उम्र बदिउज़्ज़मा अल-हमज़ानी इंदमा तरका बल्दतहु व बदा यज़रिबु फिल बिलाद। देखिए, ज़रबा फिल बिलाद का मतलब होता है साफ़रा फिल बिलाद, ताफ़ा फिल बिलाद। ठीक है, तो बदिउज़्ज़मा हमज़ानी की उम्र कितनी थी जबकि उसने अपना शहर छोड़ा और वो शहरों शहरों घूमने लगे? बदा यज़रिबु फिल बिलाद, शहरों शहरों घूमने लगे। इब्नुल अशरीन 20 साल के थे, इब्नुल खामिस वल अशरीन 25 साल के थे, इब्न सानिया वल अशरीन 22 साल के थे, और इब्न सलासीन 30 साल के थे। बताएं, जिस वक्त अपना इलाका, अपना शहर छोड़ करके एकदम शहरों में एकदम घूमने लगे, कभी ये शहर कभी वो शहर, तो उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? 22 साल। ऑप्शन 1 आपका 22 सर, 22 22। 22 साल थी उसकी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
اور اسی 22 سال کی تھی تو یہی گھومتے گھومتے نیساپور پہنچے، تو نیساپور میں ابوبکر خوارزمی سے وہ ہو گئی تھی. تو کیا ہے، تو یہی سوچے کہ 22 سے 25 سال تک کی عمر رہی ہوگی جب وہ وہاں گئے ہوں گے، ان سے مقابلہ کیا ہوں گے. سوال نمبر 9 ہے من صاحرہ بدیع الزماں الحمدانی بحرات. تو بدیع الزماں حمدانی نے کس سے مصاہرہ اختیار کیا ہرات میں؟ ساہرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سسرالی رشتہ قائم کر دینا. ٹھیک ہے، ساہرہ کہ کس کے یہاں بدیع الزماں حمدانی نے سسرالی رشتہ قائم کر لیا ہرات میں؟ تو حریری، ابو الحسن ابو علی الحسین بن محمد الخشنامی الخوارزمی، ابو الحسن احمد بن فارس. بتائیں 9 کا کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آپشن 4 سر. آپشن 4. آپشن 2 صحیح ہوگا کہ بدیع الزماں حمدانی نے جس سے سسرالی رشتہ قائم کیا تھا ہرات میں وہ یہ ہیں ابو علی الحسین بن محمد الخشنامی. سوال نمبر 10 ما اسم بطل مقامات الحمدانی. یہ آپ لوگ خود بتائیں مقامات حمدانی کے بطل کا کیا نام ہے؟ آپشن 1 ابوالفتح اسکندری. ابوالفتح الاسکندری. اور مقامات حریری کے بطل کا نام کیا ہے؟ ابو زید سروجی. جائز ابو سروجی. زید السروجی. چلیے یہ کوشچن آ ہی گیا. ما اسم بطل مقامات الحمدانی. مقامات حمدانی کے بطل نہیں، یہ غلطی ہے. 11 یہ بطل نہیں، یہاں پہ راوی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہی آ گیا ہے. یہاں آپ راوی دیکھیے، راوی. ما اسم راوی مقامات الحمدانی. مقامات حمدانہ کی راوی کا نام کیا ہے؟ موسیٰ بن زید، عیسیٰ بن ہشام، کل من الاثنین، لیس ای واحد من الثلاث. بتائیں. عیسیٰ بن حشام. عیسیٰ بن حشام. جی عیسیٰ بن ہشام. ٹھیک ہے. سوال نمبر 12 کم مقامتاً وضع الحمدانی. حمدانی نے کتنے مقامات لکھے؟ 52 مقامہ، 20 مقامہ، اور 40 مقامہ، 60 مقامہ. آپشن 1. آپشن 3 مقامات. 52 مقامات. ٹھیک ہے. ما اسم الحریری. حریری کا نام کیا ہے؟ آپشن 2. آپشن 2. جی آپشن 2. ہلو سر، جی بولیے. جو ہمدانی کی جو مقامات کی جو 52 بتا رہے ہیں وہ کسی کتاب میں ہے؟ کسی میں 51 ہے، کسی میں 53 ہے. 52 تو کہیں بھی نہیں دیکھا میں. 51 اور 53 کے نیٹ میں دوبارہ ایک کوشچن آیا تھا. 53 بھی مانا تھا آنسر کی اور 51 بھی مانا تھا، لیکن 52. چلو حریری شروع کرتے ہیں. چلیے سوال نمبر 1 ہے ما اسم الحریری. حریری کا نام کیا ہے؟ چلیے خیر، آپ نے جب بول دیا ہے نا تو میں یہ کروں گا کہ اگر اگلے ایڈیشن کی بات آئے گی تو میں یہاں پہ اس کو چینج کر دوں گا. اس میں جتنے قول ہیں نا سب کو ایڈ کر دوں گا، 52، 53 یا 51 والا. ٹھیک ہے، تاکہ ساری چیزیں ذہن میں رہیں. چلیے سوال نمبر 1 ہے ما اسم الحریری. حریری کا نام کیا ہے؟ علی، محمد القاسم، ابو الفضل، احمد. بتائیں. آپشن 2 محمد قاسم. آپشن نمبر 2 محمد القاسم نام ہے حریری کا. آپشن 2. سوال نمبر 2 ہے ادیب عربی ولد بقریۃ یقال له المشان فمن ہوا. ایک ادیب ہیں، عربی ادیب ہیں جو کہ اس گاؤں میں پیدا ہوئے جس کا نام تھا المشان، یعنی اس گاؤں کا نام تھا مشان. فمن ہوا، تو وہ ادیب کون ہے؟ الحریری، محمد القاسم، کل من الاثنین، بدیع الزماں الحمدانی. بتائیں.
ऑप्शन 3 कुल्लु मिनल इस्नाइन। ऑप्शन थर्ड सही होगा, चूँकि हरीरी के नाम से जाने जाते थे और मोहम्मद अल कासिम इसका असल नाम था। सवाल नंबर 3 है ऐन नशअ अल हरीरी, हरीरी कहाँ पले बढ़े? बसरा, कूफा, शाम, फलस्तीन, बताएं। बसरा। बसरा, हरीरी जो पले बढ़े हैं, नशात पाई है, ये बसरा में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए सवाल नंबर 4 है लिमादा लुक़िब मोहम्मद अल कासिम बिन अली बिन हरीरी, मोहम्मद अल कासिम बिन अली का लक़ब हरीरी क्यों पड़ा? मोहम्मद अल कासिम बिन अली का लक़ब हरीरी क्यों पड़ा? नंबर 1 लिअन्नहु कान फ़ी अव्वल अमरिही यबीउल हरीरी, क्योंकि वो शुरू में यबीउल हरीरा, हरीरा है ये, हरीरी हो गया है, क्योंकि ये शुरू में ये रेशम बेचा करते थे। ठीक है, शुरू में ये अपने शुरुआती दिनों में ये रेशम बेचा करते थे। नंबर 1। नंबर 2 है कि कान यस्ताउल हरीरी, हरीरा, वो रेशम बनाया करते थे। ठीक है, और नंबर 3 है कुल्लु मिन इस्नैन। नंबर 4 है निस्बतन इला मौलिदिही, उसके जहाँ पैदा हुए, जाए पैदाइश की तरफ मंसूब करते हुए उसको हरीरी कहा जाता है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? जी, ऑप्शन 3। ऑप्शन थर्ड सही होगा, क्योंकि ये शुरू में हरीर रेशम वो बेचा भी करते थे, रेशम बनाया भी करते थे, इस वजह से इसको हरीरी कहा गया। चलिए सवाल नंबर 5 है मादा सहीहुन अनिल हरीरी, हरीरी के बारे में क्या सही है? नंबर 1 काना दमीमन व कसीरन, बहुत वो गंदे, दमीम मतलब जो गंदा रहता हो, काना दमीमन व कसीरन, वो बहुत ही, और जो देखने में बढ़िया ना हो, दमीम मतलब जो देखने में वो हैंडसम ना हो, बहुत ही भद्दा लगता हो देखने में, उसको बोलते हैं दमीमन। काना दमीमन व कसीरन, वो देखने में बहुत ही बदसूरत लगते थे, वो कसीरन, और वो छोटे कद के थे। काना बकीलन कदीरसा, वो बकील थे और गंदा कपड़ा रखते थे। काना मूलान बिनतफी लिहयतिही अंदर तफकीरी, और काना मूलान, नतफा में से होता है नोचना, वो अपनी दाढ़ी, लहतुन में से दाढ़ी, काना मूलान बिनतफी लिहयतिही, वो अपनी दाढ़ी नोचने के आदी थे, अंदर तफकीर, सोचने के वक्त, यानी जब कुछ सोचते थे तो दाढ़ी पे उसके हाथ होती, उंगलियां होती थी, और वो एकदम नोचते भी रहते थे और सोचते भी रहते थे। नंबर 4 कुल्लु मिन अस्सलास, तीनों में से हर एक बात सही है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि इनके अंदर ये सारी चीज़ें थी। काना दमीमन व कसीरन, वो बदसूरत भी थे, छोटे भी थे, बकील भी, कपड़ा भी गंदा रहता था, और दाढ़ी नोचने की आदत थी। सवाल नंबर 6 मादा सहीहुन अनिल हरीरी, हरीरी के बारे में कौन सी बात सही है? कातिबुन मुख्तिर, वो कातिब हैं जो कि बहुत ज़्यादा लिखते हैं। लैसा शायरन, वो शायर नहीं है। नंबर 4 कुल्लु मिनल इस्नैन, दोनों की दोनों बात सही है। नंबर 4 शायरुन मुख्तिर, वो एक शायर हैं जो बहुत ज़्यादा लिखते हैं। तो 6 का बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन 3। नहीं, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही होगा। बात यह है कि सही होना नहीं लग रही है, हरी के बारे में कौन सी बात सही है? तो कातिबुन मुख्तिर, एक कातिब हैं जो बहुत ज़्यादा लिखते थे, ये बात सही है। ये बात सही नहीं कि लैसा शायरन, बल्कि वो शायर थे। और ये कुल्लु मिनल इस्नैन, तो ये भी गलत ही हो जाएगा। फिर शायरुन मुख्तिर, ऐसे शायर हैं जो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, ये भी बात सही नहीं। शायर थे लेकिन मुकिल थे, कम लिखते थे, ज़्यादा नहीं लिखते थे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? सवाल नंबर 7 मादा सहीहुन अनिल हरीरी, वो हो गया, अच्छा रिपीट हो गया इसका। सवाल नंबर 8 लैसा मिन मुअल्लफात अल हरीरी, हरीरी के मुअल्लफात में नहीं है, यानी हरीरी की कौन सी किताब नहीं है? नंबर 1 दुर्रतुल गवास फी अवामिल खवास, नंबर 2 मुल्हतुल इराब, नंबर 3 कुल्लु मिन इस्नैन, नंबर 4 अल बयान व तबीन। तो बताएं हरीरी की कौन सी बुक नहीं है? ऑप्शन 4 वेरी गुड। सवाल नंबर 9 फी अय्यि फन्न कतब अल हरीरी मुल्हतुल इराब, हरीरी ने मुल्हतुल इराब किस फन में लिखा? अन्नहव, अल बलागा, अल बदी, अल शेर। ऑप्शन 1 सर।
अन्नहु। सवाल नंबर 10 है मन हुआ रावी फी मकामात अल-हरीरी। मकामात अल-हरीरी के रावी कौन है बताएं। ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 हारिस बिन हम्माम। हारिस बिन हम्माम है मकामात हरीरी के रावी। सवाल नंबर 11 है मनिल बतल फी मकामात अल-हरीरी। मकामात हरीरी में बतल कौन है। ऑप्शन 1 अबू जैद। अब अबू जैद सरोजी ये हैं बतल हैं मकामात हरीरी के। कम आदद मकामात हरीरी। मकामात हरीरी की तादाद कितनी है बताएं। ऑप्शन 1 कौन सा? हम 50। है मतलब कोई दूसरी भी इसमें इख्तलाफ इसमें भी है क्या। अब हाँ तो चलें। सवाल नंबर 13 है मन अशारा अल हरीरी अन यदा मकामातहु। किसने हरीरी को मशवरा दिया था कि वो अपने मकामात लिखें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 13 का बताएं। अरे यकीन नहीं है सर। जी पता है सर। हाँ आप ऑप्शन 2 अल खलीफा अल मुस्तफी बिल्ला ने हरीरी को मशवरा दिया था कि मकामात लिखें। ठीक है चलिए आगे चलें। अदीब उन साहिब अल खबर। एक अदीब है जिनको साहिबुल खबर मुतय्यन किया गया। ए मा युशबिहु साहिब मुफलिहत इस्तेलामात। यानी कि साहिबुल खबर एक पोस्ट है जो कि इंक्वायरी का जो जॉब होता है उस पे जो मुतय्यन होता है उसकी तरह होता है ये जॉब। तो वो कौन है। आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं। जी जी। हाँ तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझें मसलहतुल इस्तेलामात। मसलहतुल इस्तेलामात का माना होगा जॉब ऑफ इंक्वायरी। ठीक है इंक्वायरी ऑफिस में जो काम करते हैं उन्हीं को कहा जाएगा साहिब मसलहतुल इस्तेलामात। ठीक है उसी को कहा जाता है साहिबुल खबर। तो ये सवाल 14 है अदीब उन साहिब अल खबर। एक अदीब है जिनको साहिबुल खबर मुतय्यन किया गया। ए मा युशबिहु साहिब मसलहतुल इस्तेलामात। यानी कि ये जो है उस इंसान की तरह है जो कि इंक्वायरी ऑफिस में काम करता हो। तो फमन हुआ तो वो कौन है वो अदीब बताएं। अल हरीरी मोहम्मद कासिम कुल्लुम इस्नैन बदिउज़्ज़मा हमदानी। बताएं जल्दी बताएं। आवाज आ रही है क्लियर है या नहीं बताएं। ऑप्शन 3 सर। आवाज अच्छा ठीक है ऑप्शन थर्ड ठीक है ओके। ऑप्शन थर्ड होगा ये हरीरी मोहम्मद कासिम की है। ठीक है चलिए सवाल नंबर 15 है मता तूफ़ी अल हरीरी। हरीरी की वफात कब हुई। 516 हिजरी और 1222 ईस्वी मिनल मीलाद कुल्लु मिनल इस्नैन 1054 ईस्वी। तो बताएं ऑप्शन 15 का सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 3 कुल्लु मिनल इस्नैन। सर हरीरी की जी बोलिए। कहीं कहीं 1122 भी है। ओ हाँ सर 1122 है। 1122 दोनों है। 1222 भी है, 1122 भी है। कौन सा सही ये होगा। 1122 को मतलब ये 12 हो गया ना सर। 1054 में पैदा हुआ 12 से क्यों होगा सर 11 होगा सर। 1100 है हसन जैद अहमद सर हसन मिस्टर जैद। हन्ना फाखुरी में 1222 है। ये 1222 इसमें आप लोगों ने 11 से 22 पढ़ा है। हसन जैद तो हाँ नहीं है सर जी। अहमद हसन जैद की किताब में है सर। हाँ तो डेट के सिलसिले में जो है ना उसमें थोड़ी सी वो है इस वजह से डेट के सिलसिले में उनसे परहेज कीजिए। डेट देखना हो तो इससे देखिए हन्ना फाखुरी वगैरह से देखिए। सर सर उसमें हिजरी क्या दिया हुआ है हिजरी।
हिजरी है इसमें 516, हिजरी 516 और ईस्वी 1222। तो इसमें तो है आपका यहीं से तो मैंने लिखा है कि 516 हिजरी, ये देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 1222 ईस्वी। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उनका पैदाइश कितना है सर? सर तो अलग हो जी? जाता है ना, तो फिर उनका पैदाइश कितना है? 1 हिजरी से 446 से 500 करते तो ये सब अलग हो जाता है ना। तो सर उनका पैदाइश चलिए सवाल नंबर 16 है, मता वुलिद अल हरीरी, हरीरी कहाँ पैदा हुए? कब पैदा हुए? 516 हिजरी, 1222 ईस्वी, कुल्लू मिन इस्नैन और 1054 ईस्वी। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा 16 का? ऑप्शन 4 सर। जी ऑप्शन 4 सर पैदा हुआ। ऑप्शन 4 सर, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जी, ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। 1054 ईस्वी में पैदा हुए हैं, 1054 ईस्वी, और बाकी जो ये है 516 हिजरी। लेकिन 516 हिजरी में पे हिजरी 516 है, ठीक है, 516 हिजरी है, नहीं 516 हिजरी में वफात पाए हैं ये, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1054 में ये पैदा हुए हैं। और आगे पढ़ें या आज ये 3 ही रखें, कल पढ़ेंगे?